Hello student, welcome to my channel Educational Buddha. I am Hemant Rana and today we will discuss the chapter number 8, Who is Heavier, of NCERT textbook of class 3rd Mathematics, and this video is useful for all CBSE board school like Kendriya Vidyalayas, and here we'll discuss the page number 118 to 121. Let us start our video. Page number 118. Activity time. Question number A. Make a list of things bought at your home. Find out how much of each thing is bought at one time. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onions, ginger, etc. हम सब लोग हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं लाइक राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, आटा, मिल्क, ऑनियन, जिंजर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो हमें उन चीज़ों का लिस्ट बनाना है और वो भी लिखना है उसके सामने कि एक ही बार में अगर वो चीज़ खरीदते हैं तो हम कितनी खरीदते हैं। दैट मीन्स हाउ मच, लीटर, ग्राम, किलोग्राम एटसेट्रा, कितनी खरीदते हैं। And here we will write name of the things, and here we'll write how much bought. And our first thing is rice, wheat, dal, sugar, milk, onion, ginger, tea, oil, salt, soap, atta. These all things we bought for our home. हमारे घर के लिए ये खरीदते हैं. And now we are going to write how much we bought these things at one time. एक ही समय पे, एक ही टाइम पे हम कितनी चीजें खरीदते हैं. वो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर लिविंग इन आ होम, हमारे घर में कितने लोग रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजें खरीदते हैं. तो जनरली एक फैमिली में 4 या 5 फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो इसको हम नज़र में रखते हुए यहाँ पे वो चीज़ कितनी खरीदते हैं वो लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइस 5 kg, wheat we buy 10 kg at one time, dal 2 kg, sugar 3 kg, milk 1 liter. मिल्क लिक्विड है तो उसको लीटर में मेजर करेंगे. मिल्क इज नॉट मेजर्ड इन केजी और ग्राम बिकॉज मिल्क इज लिक्विड थिंग एंड लिक्विड मस्ट बी मेजर्ड इन लीटर्स और मिलीलीटर. सो मिल्क 1 liter, ऑनियन 2 kg, जिंजर 250 ग्राम, टी 500 ग्राम. once again oil, liquid things 1 liter or 5 liter, salt 1 kg, soap 6 pieces, and atta 5 kg or 10 kg. तो ये सारी चीजें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सारी की सारी चीजें आप अपने नोटबुक में लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 119. Activity time. Question number B. Guess the weights and match. Elephant, puppy, sack of rice, cow, suitcase, and small unripe mango.
80 kg, 2 kg, 400 kg, 10 kg, less than 1 kg, and more than 1000 kg. Okay, before we go ahead, if you not subscribe my channel, then do not forget to subscribe my channel. आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। अब ये जो सारी चीजें यहाँ पे हमें दी गई हैं प्लस जो एनिमल्स है उनको हमें उनके वेट से मैच करना है। फर्स्ट एलिफेंट, पपी, sack of rice, cow, suitcase, and mango. So, an elephant more than 1000 kg, puppy 2 kg, sack of rice 80 kg, cow 400 kg, suitcase 10 kg, and mango less than 1 kg. ये भी आपको आपके नोटबुक में करना है। वीडियो को पॉज कीजिए एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक, और आपको ड्राइंग भी बनानी है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। An ant says, guess which of the following things weigh more than 1 kilogram and which one will weigh less than 1 kilogram? कौन सी चीज है जो हम अगर उसका वेट करें तो मोर देन 1 kg मिलेगी, और कौन सी चीज है जिसका हम वेट करें तो वो लेस देन 1 kg मिलेगी? फर्स्ट वन इज योर स्कूल बैग, a geometry box, a brick, a big pumpkin, and a pair of slipper or shoes. Okay, first one, your school bag, not empty bag, school bag with notebooks and textbook, जिसमें टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक भरी हुई है वैसा बैग, उसका वेट क्या होगा? लेस देन 1 kg और मोर देन 1 kg? Guess? Yes, of course. More than 1 kg, 1 kilogram. Geometry box? Sure. Less than 1 kilogram. A brick? Tell me the answer. What is the weight of brick? Brick का weight क्या होगा? Yes, of course. More than 1 kilogram. And a big pumpkin. बड़ा वाला pumpkin. Yes, more than 1 kilogram. And a pair of slippers or shoes. Not both. Slippers और शूज, स्लीपर या तो शूज, दो में से किसी एक का वेट, दोनों का वेट एक साथ नहीं करना है, ठीक है? या तो स्लीपर्स का वेट करो, पेयर ऑफ स्लीपर्स, या तो पेयर ऑफ शूज। तो अगर इनका वेट करेंगे तो हमें मिलेगा लेस देन 1 किलोग्राम, लेस देन 1 kg। ओके, ये तो इस आंसर को भी आप पॉज कीजिए और आपकी नोटबुक में लिखे। ओके, गो अहेड, पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर डी। यूज योर बैलेंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। आपने जो बैलेंस बनाया था उसका यूज करके बताओ कि नीचे जो भी चीज दी गई है उसमें कौन सी चीज हैवी है और कौन सी चीज लाइट है। फर्स्ट वन इज अ वाटर बॉटल और क्रिकेट बॉल। ओके, तो पहले तो ये देखो आप कि दोनों पेन में, बैलेंस के दोनों पेन में जो भी चीज रखेंगे अलग अलग,
तो जो चीज भारी होगी, जो चीज हैवी होगी, वो पेन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो ये इजी है, अंडरस्टूड है कि जो चीज नीचे होगी वो वाला छोर बैलेंस का, वो वाला पेन नीचे जाएगा। तो यहाँ पे नीचे क्या जा रहा है, बॉल या वाटर बॉटल। तो यहाँ पे बॉल नीचे जा रहा है, दैट मीन्स बॉल इज हैवियर देन अ वाटर बॉटल। अ क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन अ वाटर बॉटल। नंबर 2, योर शूज और योर पेंसिल बॉक्स। आपके शूज ज्यादा भारी है या आपका पेंसिल बॉक्स ज्यादा भारी है? सिंपल, योर शूज इज हैवियर देन आ पेंसिल बॉक्स। हमारे शूज का वेट ज्यादा होता है पेंसिल बॉक्स से। ओके, नंबर 3, योर मैथ बुक और योर हिंदी बुक। अब दोनों टेक्स्ट बुक उठाओ, मैथ की और हिंदी की, दोनों को अलग अलग हाथ में रखो और देखो कि किसका वेट ज्यादा है। तो आप रियलाइज करेंगे कि मैथ बुक इज हैवियर देन हिंदी बुक। हमारे हिंदी की टेक्स्ट बुक से मैथ की टेक्स्ट बुक का वेट आपको थोड़ा सा हैवी दिखेगा। नंबर 4, योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग। इसका आंसर तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपकी बैग का वेट कितना है और आप कौन से फ्रेंड को चूज करते हैं और उसकी बैग का वेट कितना है, वो तो आपके फ्रेंड या आप ही को पता। तो आप अपने फ्रेंड की बैग और अपनी बैग को कंपेयर करो और जिसका वेट ज़्यादा हो वो वाला आंसर आपको यहाँ पे लिखना है कि माई बैग और माई फ्रेंड बैग इज हैवियर देन माई बैग और माई फ्रेंड बैग, जिसकी बैग हैवी है उस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर ई। weigh 1 kg of mud or sand, divide it equally into 2 bags and use the balance to check if both the bags have equal weight. Okay, first you have to collect 1 kg of mud or sand. मर्ड या तो फिर सैंड 1 kg लेना है एंड डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 पार्ट, और उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इफ वी डिवाइड 1 kg into 2 equal part, so we will get 500 ग्राम एंड 500 ग्राम। अगर हम 1 kg को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, so 1 part contains half kg, राइट। 1 kg को डिवाइड 2 पार्ट में करेंगे और दोनों पार्ट जो है वो इक्वल वेट के होंगे, तो हाफ के जी होगा। एंड हाफ के जी मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सो हाफ के जी इज इक्वल टू 500 ग्राम। एंड यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट और नॉट। ओके, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक आंटी ने जो मर्ड लिया है उसको 2 इक्वल बैग में डिवाइड करके भर के दोनों बैग को अलग अलग पेन में रखा है। तो जो बैलेंस है वो बैलेंस में रह रहा है, जो तराजू है वो बैलेंस हो रहा है, ना कोई पेन नीचे जा रहा है ना कोई पेन ऊपर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होते तो जो ज्यादा होता वो पेन नीचे जाता और कम होता वो पेन ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे इक्वल डिवाइड किया है, इसीलिए जो तराजू है हमारा वो बैलेंस में है। Okay, so each bag of mud is your half kg weight, half kg, that means 500 gram, and use it to weigh some other things around you. और ये हाफ के जी जो हमने यहाँ पे वेट बनाया है उससे आप आपके आसपास की चीजें भी वेट कर सकते हैं। And if we equally divide 1 kg of mud or sand into 2 bags, the weight of both the bags will be equal. Now, with each half kg weight, you can weight fruits, vegetables, or even textbook on balance. अगर हमने इक्वली डिवाइड किया है 1 kg मड और सैंड को, तो हमें 500 ग्राम ही मिलेगा। दैट मीन्स
हाफ के जी वेट के 2 बैग मिलेंगे और हाफ के जी वेट की मदद से हम फ्रूट्स, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक भी वेट कर सकते हैं. Okay, question for you. Make a list of things weighing less than half kg and things weighing more than half kg. Okay, now we divided the 1 kg sand or mud into two equal part. दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हाफ के जी एंड हाफ के जी. अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसमें से कौन सी चीजें लेस देन हाफ के जी हैं एंड कौन सी चीजें मोर देन हाफ के जी हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं जो लेस देन हाफ के जी हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो मोर देन हाफ के जी हैं. तो वी आर गोइंग टू राइट सम थिंग्स वेइंग लेस देन हाफ के जी. हमारे आसपास जो कोई चीजें हैं जो हाफ के जी से कम है उसका लिस्ट बना रहा हूं मैं. आप इसमें बहुत सारी चीजें अपने आप भी ऐड कर सकते हैं. So things weighing less than half kg are a geometry box, pair of sandals, your uniform, lunch box, socks, watch, belt, spectacles, slippers, gloves, etc. देखो, सैंडल्स, यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स, सॉक्स, वॉच, बेल्ट, स्पेक्टिकल्स, स्लीपर्स, ग्लव्स, ये सारी चीजें हैं वो लेस देन हाफ के जी हैं. आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं जो लेस देन हाफ के जी हो. एंड थिंग्स वेइंग मोर देन हाफ के जी आर योर स्कूल बैग, on weight, bed, fan, chair, table, coat, television, etc. Okay, your school bag more than half kg. On weight, अपना खुद का weight more than half kg. Bed, fan, chair, table, coat and television. ये सारी चीजें हैं जो more than half kg हैं. इसके अंदर और भी चीजें आप ऐड करना चाहें तो you can add some more things in this list. तो ये भी आंसर आपको वीडियो पॉज करके आपकी नोटबुक में लिखना है. ओके, प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 121. लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस. ओके, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप and grocery shop. Have a look at the weights they use and find out who uses the biggest weight. आपके आसपास जो भी जंक डीलर है या वेजिटेबल शॉप है या ग्रोसरी शॉप है या कोई और शॉप है वहां पे जाइए और आप देखिए कि कौन सबसे बड़ा वेट यूज कर रहा है, नॉट बैलेंस, वेट यूज कर रहा है. सो अ जंक डीलर uses the biggest weight. तो जो जंक डीलर होगा उसके पास सबसे बड़ा वेट मिलेगा आपको. एंड हु यूजेस द स्मॉलेस्ट वेट. सबसे स्मॉल, छोटा वाला वेट कहाँ पे मिलेगा आपको? वेजिटेबल शॉप में मिलेगा, जंक डीलर के पास मिलेगा या ग्रोसरी शॉप में मिलेगा. तो द स्मॉलेस्ट वेट इज यूज्ड इन ग्रोसरी शॉप. ग्रोसरी की जो दुकान होगी वहां पे आपको 100 ग्राम टू 50 ग्राम का भी वेट आपको देखने को मिल जाएगा. एंड जो जंक शॉप होगी, जंक डीलर होगा, वहां पे आपको 20 केजी या 50 केजी तक के भी वेट देखने को मिल जाएंगे. सो जंक डीलर यूजेस द बिगेस्ट वेट एंड द ग्रोसरी शॉप द स्मॉलेस्ट वेट इज यूज्ड इन ग्रोसरी शॉप. ग्रोसरी की जो दुकान होगी वहां पे सबसे छोटा वेट यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंसेस? 1, 2, 3 एंड 4. ओके, ये वाला बैलेंस देखिए, ये भी बैलेंस है, वन काइंड ऑफ बैलेंस. दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, and this is one kind of balance. Okay,
ये स्प्रिंग बैलेंस है, उससे कोई भी चीज को लटका के तोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर को इसी तरह तोला जाता है। नेक्स्ट वन, ये आपको ग्रोसरी शॉप में मिल सकता है ऐसा वाला बैलेंस। ये वाला बैलेंस आपको ग्रोसरी शॉप में भी मिल सकता है या बड़े जो मॉल्स है वहां पर भी देखने को मिल जाएगा, और जो स्वीट्स शॉप्स है वहां पर भी मिल जाएगा। और ये वाला जो बैलेंस है वो आपको जनरली जो वेजिटेबल शॉप्स है और जो हैंड कार्ट लेके रोड पे खड़े रहते हैं लोग वेजिटेबल्स बेचने के लिए, वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ये वाला बैलेंस। तो ये चारों के चारों बैलेंस ही है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन। In which shop would you find the following types of weights? Discuss with your friends. This is the weight 10 kg, 2 kg and 500 gram. These all are the weights, and you also seen this kind of weights in some shops. कुछ shops में आपको ऐसे वाले weights भी देखने को मिल गए होंगे। तो पता लगाओ कि ऐसे वाले जो weight हैं वो कौन कौन सी दुकान में देखने को मिलते हैं। ओके, and answer is such weights are used in the shop dealing with grains. Grains that means अनाज या दाल है, राइस, गेहूं, दाल है, ऐसी जो चीजें बेची जाती है जिस दुकान में, वहां पर हमें ऐसे वाले वेट देखने को मिलते हैं। Okay, so end of part 3rd, chapter number 8, who is heavier, and end of also our chapter, हमारा chapter भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। Okay student, thank you for watching this video. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड चैप्टर 8 इज कंप्लीटेड। थैंक यू।